I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. I crossed the street of the palace and came to my street, the street of the pariahs. In a corner, a threshing floor had been set up, and the knacker watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. Our people were hard at work, driving cattle in pairs, round and round, to tread out the grain from the straw. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. I stood for a while there, watching the fun. Just then, an elder of our street came along from the direction of the bazaar, holding a parcel. The manner in which he was walking made me want to double up. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small parcel in that fashion. I guessed there was something like vade or green banana bhaji in the packet, because the wrapping paper was stained with oil. He was holding out the packet by its string, without really touching any part of the parcel itself. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone, and the vades fall out? The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. Knacker opened the parcel and began to eat the vades. After I had watched all this, I went home. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. I fell about with laughter at the memory of a big man, and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. But Anand was not amused. Anand told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that knackers were upper caste, and therefore must not touch anything touched by pariahs. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. When I heard this, I didn't want to laugh anymore, and I felt terribly sad. How could they believe that? It was disgusting if a pariah held that package in his hands, even though the vade had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper. I felt so provoked and angry that I wanted to go and touch those wretched vades myself, straight away. Why should we fetch and carry for these people? I wondered. Such an eminent elder of ours goes off meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. How was it that these fellows thought so much of themselves? Was it because they had scraped 4 coins together? What did it mean when they called us pariah? Had the name become that obscene? But we too are human beings. Our people should never run these petty errands for these fellows. We should work in their fields, take home our wages, and leave it at that. Both my grandmothers worked as servants for Naicker families. In the case of one of them, when she was working in the fields, even tiny children, born the other day, would call her by her name and order her about, just because they belonged to the Naicker caste. And this grandmother, like all the other laborers, would call the little boy Ayya, master, and run about to do his bidding. It was shameful to see them do this. Even the way they were given their drinking water was disquieting to watch. The Naicker women would pour out the water from a height of 4 feet, while Pati and the others received and drank it with cupped hands held to their mouths. I always felt terrible when I watched this. अरे
बंद मत करो, हिंदी में सुनो और उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियो है, बहुत प्यारी कहानी है। कैन वी चेंज दिस, ये बामा ने लिखी हुई कहानी है जिसे हम आज हिंदी में अब सुनने वाले हैं। ये जो लड़की है ये स्कूल से एक दिन घर वापस जा रही थी। उसके शोल्डर पे आप देख सकते हैं उसकी स्कूल की बैग है। पहले ज़माने में ऐसे ही हुआ करती थी, हम भी जब बचपन में ऐसे ही स्कूल बैग पहन के जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि वो जैसे रोड क्रॉस करने के लिए जा रही थी, वहाँ पे प्लास जो है वो जो है उसका ये घर है और उसके ही घर के सामने से ये परायास मतलब जो सावकार के जैसे आदमी होता है उसे परायास बोलते हैं। तो कॉर्नर में वो जो है एक थ्रेसिंग मतलब जो धान होता है ना, वो धान में से बीज निकालने का काम करके, पहले के ज़माने में मशीन नहीं हुआ करते थे तो इस तरीके से किया जाता था। उसे पूरा धान को ऐसे फैलाया जाता था और उसके ऊपर से बैल जो है ये चल के जाते थे, आप देख सकते हैं। और वो बैल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनके पीछे वो किसान भी गोल गोल करके चलता था। तो जैसे ही ये चलते थे तो क्या होता था, ये जो धान है ये निकलने के लिए मजबूर हो जाता था। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलों के मुंह को है ना पैक कर दिया, जैसे हम लोग आजकल मास्क लगा रहे हैं वैसे उनको भी मास्क लगाया करते थे, क्योंकि वो जो नीचे क्रॉप है, वो जो धान है उसको खा ना सके इसलिए। तो ये लड़की जब ये सारी चीज़ें देखती तो सबसे पहले उसे ना बहुत मज़ा आता है। फिर वो देखती है कि एक आदमी जो है ना, ये एक आदमी एक पार्सल को लेके जा रहा है। जो पार्सल उसने अजीब से डाल के रखा है, उसने एक मोटी सी रस्सी है उसको वो पार्सल बांध के वो रस्सी उसको पकड़ के वो लेके जा रहा है। एक्चुअली जो पार्सल है उसका ऑयल बाहर आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो है ना ये एक तो समोसा वड़ा, आलू वड़ा, नहीं तो फिर बनाना की सब्जी होगी, ऐसे कुछ तो दिखाई दे रहा था। लेकिन ये बुजुर्ग आदमी उस छोटे से पॉकेट को इतना तगड़ा होने के बावजूद भी वो ऐसे आराम से उसको लेके जा सकता था। ऐसे उसने अजीब ही तरह से उसे क्यों लेके जा रहा है, ये लड़की देख के एक्चुअली उसे हंसी आ रही है। ये इसमें मुझे पूरा पता है कि उसमें ग्रीन जो बनाना होते उसकी भाजी होगी, नहीं तो उसके वड़े होंगे। वो ऑलरेडी केला का जो पत्ता है उसमें रैप है और वो रैपिंग और न्यूज़पेपर में रैप किया गया है। ये तो कोई भी ध्यान से देख सकता है, लेकिन ये ऐसे मोटे से धागे से इसे रैप करके इसके इसे ये आदमी पकड़ के क्यों जा रहा है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी बहुत फनी लग रहा था। वो लड़की मन ही मन हंस रही थी, इतनी इस तरह से वो सोच रही थी कि हे भगवान, दुनिया में कैसे कैसे इंसान होते हैं। देखो ये आदमी अपने हाथ को तेल न लगने के लिए क्या क्या कर सकता है, ऐसे वो सोच रही है। तभी वो जो पार्सल वाला आदमी है वो इस प्रयास के पास आ जाता है, ये जो लैंड लॉर्ड है इसके पास, और वो वहाँ पे रख देता है। तो प्रयास जो है ये इसमें इस रैपिंग में से इस पार्सल जो है ये हाथ में पकड़ लेता है। तो वो दूसरा आदमी जो है ये अपने हाथ में जो थ्रेड है, मतलब धागा जिससे वो पकड़ के ला रहा था, वो काट देता है। वो नीचे भी नहीं रखता है, काट देता है। और ये आदमी इसमें से निकले हुए वड़े जो है ये आराम से खा रहा है, किसी को दे भी नहीं रहा है, कुछ नहीं। लेकिन लड़की जो है, ये लड़की ये सब चीज़ें देखती है और वो हैरान है, परेशान है, उसे हंसी भी आ रही है। वो घर जाती है और उसका जो भाई आनंद है वहाँ पे बैठा हुआ है, उससे ये पूरी स्टोरी बड़े ही हंसी मजाक से बताती रहती है कि भैया आज मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी। और मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी तब जब वो आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना छोटा सा जो पार्सल है वो ऐसे इस तरीके से लेके जा रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा है, ये उसको गेम का कोई टास्क दिया है कि ये डेयरिंग है तुम्हारी, कि ये डेयर करके दिखाओ करके, ऐसे कुछ तो मुझे लग रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अन्ना जो है ये बिल्कुल इस चीज़ के लिए उसे कोई सरप्राइज़ नहीं लगा। उल्टा उसने अपने बहन की तरफ देखा और बोला, बहन तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसे तुम हंसी मजाक समझ रही हो ये दुनिया की रीत है। इन लोगों को लगता है कि हम लोग जो है ये नीचे जाति के हैं
और ये जो है ये जैसे परायास वगैरह ये उच्च जाति का है और हम नीच जाति के लोग इनके नीचे काम तो करना है, लेकिन उनकी कोई भी चीज़ को हमें छूना मना है। और इसीलिए वो आदमी इतना हट्टा कट्टा होते हुए भी ऐसी चीज़ ऐसा पार्सल लेके जा रहा था। इन लोगों को लगता है कि हम नीच जाति के लोग अगर इस पार्सल को छू लेंगे तो ये जल ये अन्न अपवित्र हो जाएगा और हमें अपवित्र मानते हैं, हमें अछूत मानते हैं ये लोग। इसलिए से जिस चीज़ पे तुम इतना हंसती हो ना बेटा, इस चीज़ पे हंसना नहीं है, हमें तो बहुत बुरा मानना चाहिए। तभी लड़की को फीलिंग आ जाती है कि नहीं, जो प्रयास है उसने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया। एक्चुअली ये आदमी लोग काम करते हैं तभी तो वो प्रयास आराम से बैठ के वहाँ पे खाना खा सकता है। वहाँ पे इतना बड़ा उसने मज़े से खाया। लेकिन अगर ऐसे लग रहा था तो वो प्रयास को ये सोचना चाहिए था कि अगर पार्सल को वो आदमी अछूत है वो छू भी लेता था तो पार्सल है, पार्सल के ऊपर पे मतलब बनाना के पत्ते के ऊपर वो वड़े रखे हैं और वो भी एक न्यूज़पेपर से रैप किए हैं। हाथ भी लगाता था तो न्यूज़पेपर को लगाता था, उसमें क्या तो बनाना लीव्स है उसको थोड़े लगाना था। ये समझ में क्यों नहीं आता है। और अछूत और छूत ये क्या है? हम लोग जब इतना सारा काम करते हैं, ये सारी मेहनत करते हैं, वो टाइम पे हम सारी चीज़ों का हाथ लगाते, वो तो रेडीमेड इन लोगों को चाहिए। तब इन लोगों को छूत और छूत की बातें नहीं समझ में आती है। उसके लिए ये लड़की सच्ची में अभी बहुत गुस्सा महसूस करती है और ये जो चीज़ है छूत अछूत, ये इसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वो मन ही मन सोचती है कि उसने बहुत बार ऐसे कुछ अलग ही चीज़ें देखी है, तो वो अलग चीज़ें अलग नहीं है, वो सब छूत अछूत की बातें हैं। इसलिए हम लोगों को दूर बिठाया जाता है, हम लोगों को ऐसे बिहेवियर से किया जाता है। ये सब वो देख रही थी और ये फील कर रही थी। ये सब देखने के बाद वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या हम इसे बदल नहीं सकेंगे? क्या ये ऐसे ही चालू रहने वाला है? ये उच्च जाति के जो लोग जो अपने आप को ब्राह्मण समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं, ये कभी हमें इंसान भी समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। और ये जो बैल है, ये बैल के जैसे मुंह में बांध के रखा है और वो जो पीछे से आदमी है वो बेचारा वो मतलब सेम ही एनिमल्स और इंसान इन 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 सबको तो सेम ही सब ट्रीटमेंट दी जा रही है। उसके बारे में वो अपने भैया से बात करती है, लेकिन भैया उसे कुछ भी नहीं बताता है, उसे उल्टा इतना बोल देता है कि ये रीति चली आ रही है और पता नहीं कितने दिन तक ये रीति चली आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का लैक है। मतलब कम एजुकेशन होने के कारण लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वो उनसे बताते हैं। और लड़की भी यही समझ में थी। और लड़की जो है ये बोलती है कि हमारे जो ग्रैंड मदर है वो एज ए सर्वेंट उनके यहाँ काम करती रहती है, जो चूल्हा चौकी सब। इवन उसने देखा है कि ये उसकी जो दादी माँ है वो इतना सारा काम करते हुए एक दिन खेत से वापस आते समय वो जो छोटा सा किसान का बेटा है, लैंडलॉर्ड का जो बच्चा था, वो इतना छोटा सा होते हुए भी ये बूढ़ी अम्मा उसे मालिक बोलती है और वो बहुत ही गंदे तरीके से उसका अपमान करता है। तो इस बूढ़ी इतनी एज की औरत के साथ वो इतना छोटा बच्चा ऐसे बिहेव करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और ये जो बेचारी लेडी है, मतलब ग्रैंड मदर है उस लड़की की, वो दिन भर काम करती रहती है, फिर भी ये लड़का, छोटा सा लड़का, उसे जैसे उसके मम्मी पापा डांटते हैं उस तरीके से ये भी इस बड़ी औरत को डांटता रहता है। ना कोई रिस्पेक्ट है ना कुछ भी है, और इतना गंदा बिहेवियर करने के लिए उसके चेहरे पे बिल्कुल शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है। इवन वो बोलती है कि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि जब इनको पानी होना चाहिए था, पानी पीना है, वो टाइम पे भी वो लैंडलॉर्ड जो है इनकी जो खुद को बहुत ऊंची जाति की औरत समझती है, वो इस नीच जाति की औरत को पानी देने के लिए 4 फुट डिस्टेंस रख के ऊपर से पानी डालती है। और ये बेचारी बूढ़ी औरत वो ग्लास से नहीं, वो जितना पानी डाल रही है वो अपने दोनों हाथों में लेके
जितना पी सकती है उतना वो औरत पी रही है। इतना बुरा मुसीबत वो टाइम पे छूत अछूत माना जाता था, लेकिन अभी नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी को मेरे लाइक कीजिए और आप बिल्कुल ऐसे मत बिहेव कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।